সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ পুরস্কার 2024 অর্পণ সমারোহ। সাহিত্য একাডেমি প্রতি বছরই সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ পুরস্কার দিয়ে আসছে। সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ পুরস্কার 2024 অর্পণ সমারোহ এই বছর অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার জাতীয় গ্রন্থাগার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভাষা ভবন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাহিত্য একাডেমির সচিব KS রাও নিজে। তিনি শুরুতে এই অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করেন এবং প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপকদের জীবন এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শ্রোতাদের জানান। পুরস্কার প্রদান করলেন সাহিত্য একাডেমির সভাপতি ডক্টর মাধব কৌশিক। তার বক্তব্যে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অনুবাদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। বিশিষ্ট সৃজনশীল লেখকেরা কিভাবে অনুবাদের জগতে প্রবেশ করেছেন এবং অনুবাদ চর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা তার ভাষণে উঠে আসে। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট বিদ্বজন অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী। তার বক্তব্যে অনুবাদ চর্চায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অনুবাদের কথা উঠে আসে। সমারোহের সমাপ্তি ভাষণ দিলেন সাহিত্য একাডেমির উপসভাপতি অধ্যাপক কুমুদ শর্মা। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার ভূমিকা এবং ভাষা শিক্ষা এবং চর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। সাহিত্য একাডেমি অনুবাদ পুরস্কার 2024 প্রাপকেরা হলেন অঞ্জন শর্মা অসমিয়া, বাসুদেব দাস বাংলা, উত্তরা বিশ্ব মুথিয়ারি বোড়ো, অর্চনা কেশর ডোগরি, আনিসুর রহমান ইংরেজি, রহলিক অগ্রবাদ গুজরাতি, মদন সোনি হিন্দি, সিদ্ধলিঙ্গ পট্টশেট্টি কন্নড়, গুলাম নবী আতোশ কাশ্মীরি, মিলিন্দ মহমাল কোঙ্কড়ি, কেশকর ঠাকুর মৈথিলি, KV কুমারান মালায়াম, শৈবমচা ইন্দ্রকুমার মণিপুরি, সুদর্শন আঠওয়ালে মারাঠি, অমর বানিয়া লহরা নেপালি, সুভাষ চন্দ্র শতপথী উড়িয়া, চন্দন নেগি পাঞ্জাবি, সোহন দাস চরণ রাজস্থানী, সোমনাথ দাস সংস্কৃত, নাজির হেমব্রম সাঁওতালি, স্বর্গত শোভা লাল চন্দ্রানী সিন্ধি, P বিমলা তামিল, তুল্লাপতি রাজেশ্বরী তেলেগু। অনিবার্য কারণবশত গুলাম নবী আতস কাশ্মীরি নিজে এবং স্বর্গত শোভা লাল চন্দ্রানী সিন্ধি পক্ষে কোনো প্রতিনিধি কেউ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। চন্দন নেগির পাঞ্জাবি হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা। শনিবার সাহিত্য একাডেমি কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুবাদকেরা অনুবাদক সমাবেশে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে থাকবেন সাহিত্য একাডেমির উপসভাপতি অধ্যাপক কুমুদ শর্মা। Subhash Satpathy, representing Odia language. This year, I am the recipient of Translation Award for the year 2024. I have translated Ruskin Gun's autobiography, Lone Fox ANC, into Odia. And the title is, the Odia title is Koki Shaliro Ekopnatya. And I have come to Calcutta to attend the function and receive the prize. It's a great honor to be here in National Library and Shyamaprasad Mukherjee Auditorium, and in the august presence of so many eminent people and translators. I am receiving the prize. I'm really delighted. I'm thankful to Sahitya Academy and the judges, those who have selected me. It's a great honor to be here. Thank you. मैं माधव कौशिक, अध्यक्ष साहित्य अकादमी। हर साल की तरह इस साल भी ये जो अनुवाद के पुरस्कारों का समारोह है कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस साल भी हमने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी ने 19 पुस्तकों का चयन किया है, जो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के प्रति उनका अनुवाद करते हैं हम हर भाषा में। साहित्य अकादमी का जितना बड़ा काम है वो अनुवाद का ही है। हमारी एक पंक्ति हम अपनी किताबों के पीछे लिखते हैं, इंडियन लिटरेचर इज़ वन दो रिटर्न इन मैनी लैंग्वेजेस। तो भारतीय साहित्य का जो एकात्म है, भारतीय साहित्य की जो एकता है, वो इन अनुवादकों ने ही साबित की है। क्योंकि इसी अनुवाद के द्वारा मणिपुर में लिखी हुई किताब को तमिल वाला जानता है, तमिल में लिखी किताब को बंगाली वाला जानता है, और इस तरह से 24 भाषाओं में जो भारतीय सृजनात्मक लेखन है वो आम आदमी तक पहुंचता है। तो हमारे लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन को हम कलकत्ता के उन विद्वानों को, उन साहित्यकारों को भी समर्पित करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बंगाल एक ऐसी धरती है जिसमें भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा सृजनात्मक जिसको प्रतिभाएं कहती है यहाँ पैदा हुई हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों या शरद चंद्र हो। तो मित्रों, मैं आप सभी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। धन्यवाद।
2024 के अनुवाद पुरस्कार वितरण के समारोह यहाँ कलकत्ता में हो रही है। इसमें 21 भाषा के लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें असमी है, बंगाली, बोडो और उड़िया का भी। और आज की इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुकांत चौधरी जी है और अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर माधव कौशिक जी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी करेंगे। और इस मौके पर साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। और जितना भी आपको देखे जाए तो ये आज 21 लोग आज इसमें प्रेजेंट हो रही है, जबकि इस साल हम 23 लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है। 2 पुरस्कार विजेता आज आ नहीं पाए किसी कारणों से, और ये सारे पुरस्कार विजेता कल यानी 25 अक्टूबर को साहित्य अकादमी की ऑडिटोरियम के अंदर अपने जो अनुवाद के क्षेत्र में उनकी जो साहित्य के क्षेत्र में अपना जर्नी के बारे में बताएंगे। उसको हम लोग कहते हैं अवार्डिस मीट, राइटर्स मीट, ट्रांसलेटर्स मीट। वो उसमें लोग अपना अनुभव बताएंगे। आज सिर्फ अवार्ड प्रेजेंटेशन की सेरेमनी है। साहित्य अकादमी हर साल दिया जाती है 24 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद पुरस्कार, जबकि हम सब जानते हैं कि अनुवाद का बिना भारत बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री है। हर एक भारतीय कम से कम 2 या 3 भाषा जानते ही हैं। मतलब जैसे उमाशंकर जोशी जो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्डी है और साहित्य अकादमी का पूर्व अध्यक्ष भी है, एक बार कहा था कि एवरी इंडियन इज ए बाइलिंगुअल इफ नॉट ए ट्राइलिंगुअल। मतलब हर भारतीय 2 भाषा जानते ही हैं, चाहे नॉर्मल नागरिक हो या विद्वान हो, कोई भी हो। इसलिए साहित्य अकादमी 1986 से ये अनुवाद पुरस्कार देना शुरू किया, क्योंकि अनुवाद का प्रक्रिया भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि और इसमें सबसे बड़ा भूमिका हिंदी भी निभा रही है, 1-2 भाषा का बीच में सेतु बन के। जैसा कि मराठी का बुक अगर उड़िया में चाहिए, वो अगर मराठी से उड़िया में ट्रांसलेट करने वाला देश में 2 या 4 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग हैं। लेकिन उस वक्त तो हमारा हिंदी जो है, हिंदी या अंग्रेजी एक सेतु बन के अनुवाद के क्षेत्र में काम आ रही है। सो इसको ध्यान में रखते हुए अकादमी अनुवाद पुरस्कार देती है। और अकादमी की एक्टिविटीज़ में भी, जो दैनंदिन की एक्टिविटीज़ में भी 80% जो है ट्रांसलेशन के माध्यम होती है, चाहे वो पुस्तक हो या एक्टिविटीज़ हो, अनुवाद के ऊपर ही केंद्रित रहती है।